پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیحا کے جلالی اور افضل ترین نام میں میرے ہم خدمت ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں اور فالو جیزس کی اسکائپ آئی ڈی پر موجود میرے خاندان کے اراکین اور فیس بک کے کئی پیجز پر آپ جتنے بھی میرے ساتھ عزیز بھائی اور بہنیں، نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اور فیملیز شامل ہیں، آپ سب کی خدمت میں آج شب میں آداب پیش کرتا ہوں اور ممنون ہوں آپ کی دعاؤں کے لیے اور ان پرستش کے گیتوں کے لیے جو ہماری اسکائپ آئی ڈی پر گائے گئے ہیں۔ پرستارو، آپ کے لیے میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اور دعا ہے کہ آج جو ہم کلام کا حصہ سیکھنے کو ہے اس کے وسیلہ سے میں بھی ریوائیو ہو جاؤں اور آپ بھی جو ہمارے ساتھ آن لائن خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس محسوس کرتے ہوئے شریک ہیں، آپ بھی برکت پا سکیں۔ ان ایام میں کلیساؤں میں روزہ سے متعلق بات چیت ہوتی ہے اور بہت خدا کا کلام خدا میں دین سناتے ہیں۔ ہماری اسکائپ آئی ڈی پر بھی بھائی جی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہماری اسکائپ آئی ڈی پر بھی روزہ سے متعلق ریگولر سٹڈیز جا رہی ہیں اور آج اس زنجیر کی ایک کڑی میں بنا ہوں تاکہ تھوڑا سا میں بھی اپنا حصہ ادا کر سکوں اور اس روزہ کے بڑے اور وسیع مضمون کے تعلق سے جس کے کئی پہلو ہیں جن پر سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں سے آج جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے روزہ اور روزہ کے نتائج یا فوائد آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور چونکہ آپ میں سے بہت سارے ہمارے ساتھ فیس بک پر آج پہلی مرتبہ ہے، اس لیے میں اس بات کا ذکر کرتا چلوں کہ جو ہم اردو میں روزہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے اصل زبان جو عبرانی ہے اس میں زوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اگر ہم عربی زبان میں دیکھیں تو چونکہ عبرانی اور عربی بہت حد تک ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اسکرپٹ کے اعتبار سے نہیں، الفاظ کے اعتبار سے، جس سبب سے عربی میں سوم کا لفظ آیا ہے، عبرانی میں زوم اور عربی میں سوم۔ ہم اس کے معنی عام طور پر سنتے رہے کہ اپنی جان کو دکھ دینا ہے۔ میں اس کے خلاف نہیں کوئی بات کرنا چاہ رہا، نہ ہی کروں گا، میں بھی اسی طرح سے ہی سیکھتا رہا ہوں، لیکن جب مزید عبرانی کے علماء اور اسکالرز کے ساتھ جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس لفظ زوم کے معنی آبسٹین، یعنی اپنے آپ کو الگ کرنا یا پرہیز کرنا یا باز رہنا ہے۔ پرہیز کرنا یا باز رہنا ہے۔ اگرچہ اس میں جو کھانے پینے کا عنصر ہے وہ تو ہے ہی کہ روزہ کے دوران نہیں ہوتا، لیکن
इसमें सिर्फ और खाने और पीने से ही परहेज और बाज रहना नहीं होता, बहुत कुछ और भी है जिस पर शायद हम अक्सर निगाह नहीं करते, और हमारे लिए यह जानना इंतहाई जरूरी है कि क्या कुछ और भी है कि नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ भूख हड़ताल की बात हो तो गैर कौमें भी करती है। इस रोजा का तसव्वुर मज़ाहिब आलम में किसी न किसी सूरत में जरूर मौजूद है, लेकिन जब हम बाज रहना या परहेज की बात करते हैं तो मैंने पहले कहा कि हम जो एशिया में हैं, हम रोजा के दौरान खाने से इज्तनाब करते हैं। मगरबी लोग कुछ और सोचते हैं, और उनकी सोच यह है कि रेगुलर जब रोजे रखे जाते हैं तो जिस्म डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है, और चूंकि यह खुदा का मकदस है इसलिए इस दौरान पानी का पीना कोई ममानियत नहीं है। हम एक और खादम के जरिया से कुछ दिन पहले सीख रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि हर मुआशरे में, हर मुल्क में रोजे का एक अपना तसव्वुर है, और जो भी जिस तौर पर रोजा रखता है हमें उसकी अदालत नहीं करनी। कितने घंटे का है, कितने दिनों का है, कितने हफ्तों का है, नो, हर शख्स का अपना खुद फैसला है कि मैं क्या करूं। लेकिन जब हम बाज रहने की बात करते हैं या परहेज की बात करते हैं, इस ज़ोम या सोम, रोजा या फास्ट या पर्त के एतबार से, तो इससे मुराद मैंने पहले कहा सिर्फ बिरयानियों को छोड़ना नहीं है। ऑफ कोर्स ये खुदा की नेमत है, हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन कहने का मतलब फिर से कि खाने पीने पर मोहित नहीं है कि इससे इज्तनाब और किनारा किया जाए, ये तो है ही ऑलरेडी। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और बातें हैं जिन पर से शायद हम गुजर जाते हैं, जिनके लिए बहुत अच्छी बात है कि कुछ जाना जाए, ताकि हम रोजे के असल मफहूम को समझते हुए उसके नताइज और उसके जो फवायद हैं उनको अपनी जिंदगी में अख्ज़ करने वाले हो सके। और इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हर एक शख्स एक मुनफरद किस्म की शख्सियत है, और हर एक शख्स अपने बारे में खुद फैसला कर सकता है और करना चाहिए और करे भी कि मुझे वो कौन कौन सी ऐसी चीजें और ऐसी बातें हैं जिनसे इज्तनाब करना है, परहेज करना है। मैं समझता हूं जिस्म की ख्वाहिश, जिंदगी की शैखी और आंखों की ख्वाहिश, इनसे भी परहेज करना है कि सिर्फ खाने पीने से करना है। और हमें यह भी सोचना है कि इस दौरान वो कौन सा काम है जो मुझे नहीं करना चाहिए, या ऐसे काम, ऐसे अवामल जो मुझे नहीं करने, मुझे उनसे बाज रहने की जरूरत है। हो सकता है कि इस दौरान मैं रोजा तो रखूं, लेकिन शायद सेल फोन मेरे लिए एक बीच में रुकावट का सबब हो। इसको मैं जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करता हूं, और वो भी किसी खास मकसद के लिए नहीं, खुदा के जलाल के लिए नहीं, तो मुझे इससे भी इज्तनाब करना है। टेलीविजन और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इंटरनेट भी हो सकता है कि अगर हम गैर जरूरी तौर पर इनको इस्तेमाल करते हैं तो इनसे हमें इज्तनाब करने की जरूरत है। और यह याद रखने की जरूरत है कि रोजा हम खुदा के लिए नहीं रखते, उसको हमारे रोजों की जरूरत नहीं है। रोजा की
हमारी अपनी जात के लिए जरूरत है, अपनी जरूरत है हमारी, इसलिए रोजा रखते हैं, अपनी जात के लिए और दूसरों के लिए। लेकिन खुदा के लिए रोजा रखने की कोई तुक नहीं बनती। उसकी मर्जी और उसकी हजूरी को महसूस करने के लिए और अपनी जिंदगी में जानने के लिए, शख्सी तब्दीली के लिए, बेदारी के लिए, हालात के बदलने के लिए, कौमों की तकदीर, खानदानी जिंदगियों के इनकलाब लाने के लिए रोजा का होना जरूरी है। लेकिन वैसा रोजा जैसा खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, और इस रोजा के साथ हम दुआ को कभी भी अलग ना करें, क्योंकि दुआ का भी उतना ही मकाम है जितना रोजे का है। और नंबर 2, शायद हम दुआ पर ज्यादा जोर देते हैं, खुदा करे कि दें, लेकिन शायद रोजे पर इतना जोर नहीं देते, जबकि यह इंतहाई जरूरी है। जब कभी रोजा रखा गया किताब मुकद्दस के मुताबिक और तारीख कलीसा में भी, तो उस वक्त खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी और कौम की जिंदगी में मालूम करने के लिए रोजा रखा गया। खुदा के चेहरे के दीदार के तालिब होने के लिए रोजा रखा गया, अपने गुनाहों की मुआफी के लिए और अपनी बहाली के लिए रोजा रखा गया, अपनी खुशी से रोजा रखा गया कि मेरी जिंदगी में खुशी और मसरत के फूल खिले। मुश्किल वक्त में ताइब दिल होकर बेदारी के लिए खुदा के हुजूर रोजा रखा गया। और बुजुर्ग मूसा भी इसकी मिसाल हमें नजर आते हैं खुदा की मर्जी को जानने के लिए। हम आस्तर की बाबत भी देखते हैं और सुन चुके हैं और सुनेंगे भी। ये तो वो शख्सियात हैं जिनकी बाबत हम अक्सर सुनते हैं। बुजुर्ग एलिया नबी की बाबत भी हम खुदा के कलाम में देखते हैं। अहले यहूद यौम कुफारा को रोजा रखा करते थे। अहले नैनवा ने कैसा रोजा रखा कि खुदा ने जो अपना फैसला था नैनवा की तबाहकारी के लिए वो बदल डाला। जरा सोचने की जरूरत है। और यहां तक कि खुदावंद यसु मसीह ने भी रोजा रखा और रसूलों ने भी और इब्तदाई कलीसिया के बुजुर्गों ने भी यह रोजा रखा। अगर इसकी कोई अहमियत ना होती तो उनको रोजा रखने की क्या जरूरत थी। यह वो बात है जिस पर हमें सोचने और गौर करने की जरूरत है। एक अहम तरीन बात जिसका मैं जिक्र करता चलूं और वो ये है, नंबर 1, जब हम रोजा के नतीजा के क्या नतीजा है जी रोजा का, तो यूं तो एक बड़ी फरिस्त हो सकती है कि क्या 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 इसके फवायद हैं और इसके नताइज हैं। लेकिन मैं सिर्फ चंद पर आज इस कलील से वक्त में बात करूंगा। एक बात तो यह है कि रोजा के नतीजा में जिसने रोजा रखा और खुदावन के कदमों में बैठे, खुदा के चेहरे के दीदार के तालिब हुए, अपने पापों पर पशेमान हुए, रब के साथ अपने ताल्लुक को उस्तवार किया, उन्होंने अपनी शख्सी जिंदगी में इस बात को महसूस किया कि इस दुआ और रोजा के सबब से खुदावन ने उनको तसल्ली और इत्मीनान से भर दिया है। हम इस बात के लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि जब खुदा के लोगों ने किसी भी मुश्किल घड़ी में रोजा रखा और बहुत सी चीजों से परहेज किया, उनसे बाज रहे, तो खुदा ने उनकी जिंदगी में तसल्ली और इत्मीनान और खुशी को भर दिया। इसका मतलब ये कि जब भी और जहां और जिसको
रोजा की जरूरत महसूस हुई कि मैं रोजा रखूं, उसने रोजा रखा और खुदा ने जवाब दिया। मैं पहले कह चुका हूं, हम खुदा के खुदाम से सीख चुके हैं। नैनवा की जरूरत थी और रखा, मूसा की जरूरत थी तो रखा, आस्तर ने जरूरत थी तो रोजे की अनाउंसमेंट की है, एलिया की जरूरत थी तो रोजा रखा, और योम कफारा को जरूरत थी तो रोजा रखा गया। मसीह खुदावंद की शख्सी जरूरत थी तो रोजा रखा गया। अहले कलीसिया के जो इब्तदाई कलीसिया है उसकी जरूरत थी तो उन्होंने रोजा रखा है। आज मैं और आप इस रोजे को किस तौर पर लेते हैं, हमें सोचने की जरूरत है। शायद 8 साल पहले की बात है तकरीबन, जब मैं स्वीडन में आया, फिजिकली फैमिली से दूर और अकेला। यूं तो आज भी मैं अकेला हूं, फिजिकली मैं बात कर रहा हूं, अगरचे मेरे इर्द गिर्द मेरे मसीह में भाई बहनें हैं, लेकिन फिजिकली मैं अकेला अपनी फैमिली के बगैर था यहां, और आज भी हूं। अगरचे खुदावंद ने बहुत कुछ किया है, मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन तकरीबन 8 साल पहले जब मैं यहां पर था, टोटली अकेलापन, नई सरजमीन, इस जबान का एक लफ्ज भी नहीं जानता था, और यूं लगता था जैसे मैं जीरो से शुरू कर रहा हूं। हमारे भाई जो मीटिंग प्रिजाइड करते हैं वो जानते हैं कि मैं बाज़ औक़ात चलते चलते उनके साथ या गाड़ी में रो पड़ता था, टूट पड़ता था, और रातों को मुझे अक्सर नींद नहीं आती थी। और फिर एक दिन जब मैं लेटा तो काफी देर तक कभी करवट दाएं कभी बाएं मैं पलटता रहा, लेकिन कोई समझ नहीं आती थी कि मुझे नींद क्यों नहीं आती। शायद टेंशन और फैमिली को मिस करने के सबब से, सब कुछ नया, जीरो से आगाज, ये आसान नहीं था। और उस वक्त मैं इंतहाई परेशानी के आलम में, मैं खुदा का खादम हूं और सारे खुदा के खादम परेशानियों से और दुखों से दो चार जरूर होते हैं। इस पर कई दफा पहले भी मैं बात कर चुका हूं। हर खुदा का खादम हो खुदा के साथ वफादार, तो उसकी जिंदगी में दुख और तकालीफ हमेशा दरवाजे पर दबके बैठे रहते हैं। और जब एक दिन मैं सोया और हल्की सी नींद आई, और इतनी ज्यादा आती भी नहीं थी, मुझे एकदम ये एहसास हुआ कि खुदावंद मुझे ये कह रहे हैं कि मसरूफ तो तू है, चैलेंजेस तुम्हें बहुत हैं, और इन तमाम चैलेंजेस से निकलने के लिए तुम्हारे लिए एक ही तरीका है, और वो ये कि तू रोजा रख, नंबर 1। और नंबर 2, रात के पहरों में उठकर दुआ कर। ये 2 बातें मुझे महसूस हुई जो खुदावंद की तरफ से थी। तकरीबन 8 साल से रेगुलर मेरी जो प्रेयर टाइम है, वो मैं ये बताना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन सिर्फ मैं गवाही के तौर पर बता रहा हूं। तकरीबन 2 घंटे उस वक्त जब लोग ख्वाबे खरगोश सो रहे होते हैं, उस वक्त से ये दुआया टाइम सेटल है। और हर हफ्ते के दिन सैटरडे को, सबत को, मैं मुसलसल रोजे में रहता रहा और कंटिन्यू रहा। रोजा को मुझे फिर से अब शुरू करना है क्योंकि बहुत सारे और चैलेंजेस हैं, लेकिन दुआ कंटिन्यू है अपने लिए, अपने गिराने के लिए, कौम के लिए। और आप में से बहुत सारे जो मेरे साथ
व्हाट्सएप पर हैं, आप तक मेरी दुआ हर रोज ग्रुप्स में पहुंचती है। 11 से 12 हजार लोग डेली इन प्रेयर्स को रिसीव करते हैं। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल रोजा और दुआ में लग गए और मैं आंसू बहाता और रोता था, खुदावन कब मैं अपनी फैमिली को देखूंगा, कब मैं अपने बच्चों को देखूंगा। जरा सी कोई ऐसी बात मुझे सुनने में आती, मैं टूट कर बिखर जाता। लेकिन बिलाखिर 2020 में खुदावन ने उस बंद दरवाजे को खोला और मैं फिर से इस लायक हो पाया कि इस दुआ और रोजा के नतीजा में मैं फिर से अपनी फैमिली से जाकर मिल पाऊं। और उस वक्त खुदा ने यह भी मुमकिन किया कि मैं अपनी बेटी की शादी करके आऊं और उस वक्त मनादी भी करके आऊं पाकिस्तान में। और खुदा का शुक्र है कि ऐसा हुआ। फिर सेकंड टाइम मजीद दुआ और रोजा और 2021 के एंड पर मैं गया और फिर अपने बेटे की शादी करके आया। खुदा दरवाजे खोलता है, खुदा मदद करता है। लेकिन एक बात जो ये है कि दुआ का जवाब झटपट आ भी सकता है, लेकिन बाज औकात बरस लग जाते हैं। और मुबारक है वो जो खुदा के हुजूर कायम रहते हैं और दुआ करते रहते हैं और उसके चेहरे के दीदार के तालिब रहते हैं, अपने जाने और अनजाने पापों का इकरार करते हैं और खुदा उनकी जिंदगी में इनकलाब लाता है। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि अगरचे मेरी फैमिली तो पाकिस्तान में ही है, मैं यहां फिर भी अकेला हूं, लेकिन एक तसल्ली और एक इत्मीनान खुदावन ने मुझे दिया है। और इस दौरान इन दुआओं का नतीजा क्या निकला, मेरे लिए कुछ बहनें भी, कुछ भाई भी रेगुलर मेरे लिए दुआ करके मुझे भेजते हैं और मैं उनका हमेशा कर्जदार रहूंगा और हूं भी। लेकिन एक बात मैं ये भी बताना चाहूं, इस अरसे के दौरान इन दुआओं और उन रोजों के नतीजा में खुदावन ने क्या किया, यहां लाने के बाद दुनिया के कई ममालिक के दरवाजे खोले कि जा और मुनादी कर। नंबर 2, मुकाशफा की किताब की बाइबल स्टडी अब हम इख्तिताम पर हैं। वीडियोस और ऑडियोज की सूरत में तकरीबन 5 से 6 साल लगे हैं और अब वो मुकम्मल तौर पर मेरी वेबसाइट पर मौजूद है इस अरसे के दौरान। नंबर 2, रसूलों के आमाल की किताब की बाइबल स्टडी इस अरसे के दौरान आयत बा आयत, वर्स बाय वर्स एंड वर्ड बाय वर्ड ऑडियो फॉर्मेट में मेरी वेबसाइट पर ऑलरेडी मौजूद है। यूहन्ना की इंजील की बाइबल स्टडी वर्स बाय वर्स, वर्ड बाय वर्ड मेरी वेबसाइट पर मौजूद है। खुदा ने जब यहां रखा तो ऐसे नहीं, उसका खास मकसद और प्लान है। और दुआओं और रोजा से इस मिनिस्ट्री को वो बूस्ट करता है ताकि खुदावंद का नाम इस कमजोर खादम के वसीला से खूब कसरत से जलाल और इज्जत पाता रहे। दुआ और रोजा जब मिलकर होते हैं तो खुदा अपने आसमान को खोल देता है अपने वक्त पर और अपनी मर्जी के मुताबिक, बशर्ते कि हमारा रोजा और दुआ मतलबी ना हो और उल्लू सीधा करने के लिए ना हो। नंबर 2, इस रोजा के नतीजा में जहां कहीं दर हकीकत रोजे के माना और मफहूम को समझा गया, वहां एक अहम तरीन हकीकत जो नजर आती है वो ये है कि वहां हलीमी और फरोतनी नजर आई। बाय द वे, मैं जिन जिन खुदा के
खादमों को जिनके लिए मेरे जहन में, मेरे दिल में एक बड़ा मुकाम है। साधु हुसैन मेरी जिंदगी के आइडियल रहे। उनके पास कुछ वक्त बैठने में गुजर गया, रोजा और दुआ में उनकी जिंदगी गुजरती चली जा रही थी। और कई और खुद्दाम को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं, जिनमें से कुछ इस कुर्राए अर्ज पर हैं और कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि हलीमी और फरोतनी के हुसूल के लिए रोजा और दुआ बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है। अपने जज्बात और एहसास पर कंट्रोल, अपने गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए रोजा और दुआ बहुत जरूरी है। गोया मैं ये कहूंगा कि रोजा जब दुआ के लिहाफ में लिपटा हुआ हो तो खुदा अपने लोगों को फरोतन करता है और फरोतन बनाता है। एक और बात मैं कहता चलूं, हलीमी और फरोतनी ये इसके लिए इंसान को खुद काम करना पड़ता है। खुदा हलीम बनाना जानता है, लेकिन वो डंडे के जोर पर आखिरकार, उससे पहले खुदा के लोगों को बजाते खुद अपने आप को हलीम और फरोतन बनाना है। और हलीम और फरोतन बनना पड़ता है, यह बनाया नहीं जाता। नैनवा के लोग हलीम और फरोतन बने। याकूब का खत और उसका 4 बाब और उसकी 10 आयत में यह क्लियरली लिखा हुआ है। 4 बाब और उसकी 10 आयत में खुदावंद के सामने फरोतनी करो, वह तुम्हें सरबुलंद करेगा। और पहला पतरस का खत और इसका 5 बाब और इसकी 6 आयत, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 5 की 6 में, पस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे। तुम रहो खुदा के हुजूर फरोतनी और हलीमी से, तो फिर वो तुम्हें वक्त पर सरफराज करेगा। और जब मैं जबूर की किताब को देखता हूं तो यहां भी बड़ी अहम बातें मुझे और आपको मिलती हैं। जबूर नवीस यहां पर बुजुर्ग दाऊद यो फरमाते हैं, जबूर 69 और उसकी 9 आयत से लिखा है, क्योंकि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई और तुझको मलामत करने वालों की मलामतें मुझ पर आ पड़ी। मेरे रोजा रखने से मेरी जान ने जारी की और यह भी मेरी मलामत का बायस हुआ। जब मैंने टाट ओढ़ा, यह है हलीमी और फरोतनी की बात। और जब मैंने टाट ओढ़ा और उनके लिए ज़रबे मसल ठहरा, फाटक पर बैठने वालों में मेरा ही जिक्र रहता है और मैं नशाबाजों का गीत हूं। यानी वो मुझे शायद दीवाना कहते हैं, मजनून कहते हैं कि जिसको कोई पता नहीं है। लेकिन ऐ खुदावन, तेरी खुशनुदी के वक्त मेरी दुआ तुझ ही से है। ऐ खुदावन, अपनी शफकत की फरावानी से अपनी निजात की सच्चाई में जवाब दे। कितनी खूबसूरत यहां पर मिसाल बुजुर्ग दाऊद की हमें मिलती है कि अपने आप को उन्होंने किस तौर पर हलीम और फरोतन किया है। और जबूर 35 और उसकी 13 आयत में फिर से बुजुर्ग दाऊद कहते हैं, लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में, जब वो बीमार थे, टाट ओढ़ा। ये है हलीमी और फरोतनी। और रोजे रखकर अपनी जान को दुख दिया और मेरी दुआ मेरे ही सीना में वापस आई है। अजीज भाइयों और बहनों,
जब हम खुदा के हुजूर अपने आप को हलीम और फरोतन करेंगे बजरिया रोजा और अपने रवैये को तब्दील करेंगे, तो खुदा अपने आसमान को खोलेगा और हमारी दुआएं उसके हुजूर मकबूल ठहरेंगी। आज कुछ ही देर पहले छोटी सी एक वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था, आप तक पहुंचेगी बाद में, फेसबुक पर भी किसी वक्त जब उसकी बारी आएगी तो मैं डालूंगा। एक बुजुर्ग से पूछा गया कि साहब आप क्यों इंतहाई नाना और परेशान और इंतहाई दुख और कर्ब के आलम में बैठे हुए हैं? उस बुजुर्ग ने जवाब में यह कहा कि भाई बात यह है, गरीब था बेचारा बुजुर्ग, और जवाब यह था कि मैं इसलिए इंतहाई परेशान और हैरान बैठा हुआ हूं कि ये मुआशरे के लोग जब टेलीविजन देखते हैं, फिल्म्स, मूवीज और ड्रामे देखते हैं, तो वो ड्रामे देखते हुए रोने लग पड़ते। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि जब ये ड्रामे देखते हैं या मूवीज देखते हैं तो वो रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब हकीकत में कोई ऐसी बात देखें तो उसको वो ड्रामा कहते हैं? ए ड्रामा कर दाजे पे। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि उन पर कोई असर नहीं होता। इस तरह के रोजे, इस तरह की रियाजतें खुदा के हुजूर मकबूल नहीं ठहरती। लिहाजा जो वाकई खुदा के हुजूर दुआ में और रोजा में ठहरेगा, खुदा उसके मजाज में तब्दीली लाएगा और वो हलीम और फुरतन खुदा के हुजूर होकर चलेगा। और नंबर 3, जब हम रोजा रखते हैं तो इससे खुदा की कुर्बत और खुदा की नजदीकी हासिल होती है। एक और हवाला मैं आपकी खिदमत में तलावत किए देता हूं। मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और इसका 2 बाब, यह बड़ा मारूफ हवाला है, गौर कीजिएगा। मरकस 2 बाब और उसकी 18 और 19, यहां पर लिखा है, और यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोजा से थे। उन्होंने आकर उससे कहा, यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द क्यों रोजा नहीं रखते? अब सुनिएगा जवाब, मालिक ने क्या जवाब दिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है रोजा रख सकते हैं? बताओ, जिस वक्त तक दूल्हा उनके साथ है वो रोजा नहीं रख सकते, मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। मुझे नहीं मालूम कि इससे पेशतर आप इस बात से क्या माना उख्ज करते रहे, मुझे नहीं मालूम, या क्या टीच किया जाता रहा इन आयात से, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, यीशु ने उनको जवाब देते हुए कहा, जनरल मिसाल दी कि जब तक बारात के साथ दूल्हा होता है ना, तो बाराती रोजा नहीं रखते, ये आम बात है, बाद में वो रखते हैं। लेकिन यहां ये बात मसीह खुदावन अपने बारे में कह रहे थे माफ कीजिएगा, अपने बारे से मुराद यह है कि मैं अभी अपने शागिर्दों के बीच में हूं, मेरी मौजूदगी इनमें है, मैं चला जाऊंगा आसमान पर जहां से आया हूं, उस मकसद को पूरा करने के बाद जिसके लिए मैं इस दुनिया में आया,
मैं चला जाऊंगा और उसके बाद मैं फिजिकली इनके बीच में नहीं हूंगा, दूल्हा उठा लिया जाएगा, तब वो रोजा रखेंगे, क्योंकि रोजा के जरिया से वो मेरी कुर्बत को अपने बीच में मांगेंगे, मेरी हजूरी को, कि मैं उनके बीच में हूं। इस वक्त तो मैं हूं, इसलिए वो रोजा नहीं रखते। जब मैं नहीं हूंगा फिजिकली, तब वो रोजा रखेंगे, क्योंकि मैं फिजिकली उनके बीच में नहीं हूंगा, दूल्हा उठा लिया जाएगा। इस बात से मुताल्लिक वो बात कर रहे थे। जब मैं खुदा के कलाम में कई और मकामात पर देखता हूं, खासकर जब हम यसाया 58 बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर, मैं अभी नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ बता रहा हूं, वहां पर नेगेटिव पॉइंट भी बताए गए और पॉजिटिव भी रोजे के। और जब हम 6ठी आयत से लेकर 12वीं 13वीं आयत तक देखते हैं, तो वहां पर क्लियरली लिखा है कि तुम्हारा चेहरा नूर की मानिद होगा, तुम नूर में होगे, तुम रोशनी में होगे जब तुम रोजा रखोगे तो। लेकिन एक बात मैं यह भी बताना चाह रहा हूं यहां पर, कि शागिर्दों ने रोजे रखे और खुदा ने उनको बड़ी बरकत दी और कसरत से उनको इस्तेमाल किया। 40 रखे थे या 5 रखे थे या 10 रखे थे, कलामे मुकद्दस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन रोजे का कंसेप्ट जरूर है। लेकिन एक बात यहां पर मैं करता चलूं कि रोजा के जरिया से कुर्बत इलाही हासिल होती है, यह नतीजा है रोजे का, और फिर उसके वसीला से हमारी जिंदगी, हमारा चेहरा मेहरा बदल जाता है, बशर्ते के सच्चे दिल से, सिद्ध के दिल से खुदा के हुजूर रोजा रखा जाए। आप जानते हैं कि बुजुर्ग मूसा जब पहाड़ पर गए थे रोजा रखकर, कितने दिनों का आप जानते हैं, और फिर बुजुर्ग मूसा जब वापस लौटे तो पत्थर पर लिखी हुई उन तख्तियों को, यानी शरीयत को खुदा के पास से लाए, और जब वो आए तो नीचे जो जमात थी मूसा के चेहरे को देखकर हैरान रह गई कि इतनी चमक दमक, इतनी ज्यादा रौनक मूसा के चेहरे पर। मूसा को नहीं मालूम था, लेकिन लोगों को मालूम था। क्या आप कभी किसी ऐसे शख्स से मिले जो इतना रूहानी हो, खुदा की कुर्बत और नजदीकी में हो? जब आप उसके चेहरे को देखें, वो ग्लो कर रहा हो, रौनक हो उसके चेहरे पर, खुशी और मसरत हो, ये उसके बातन में खुदा का रूह काम कर रहा होता है, जिस सबब से ऐसा महसूस हो रहा होता है। मेरा और आपका क्या हाल है, इस बात पर गौर कीजिए। याद रखें कि दुआ और रोजा का एक दूसरे से बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जब मैं मत्ती की इंजील 6 बाब और उसकी 5 आयत को देखता हूं, तो खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा, और जब तुम रोजा रखो, और जब तुम रोजा रखो। और हैरानगी की बात यह है कि मत्ती 6 बाब में ही ये जो 5 आयत थी जिसमें लिखा था और जब तुम रोजा रखो, और जब हम 16 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर आपने कहा, यानी पहले माफ कीजिएगा, ये जो मत्ती 6 की 5 है उसमें कहा और जब तुम दुआ करो। लेकिन जब हम 6 बाब और उसकी 16 आयत देखते हैं तो वहां पर आपने कहा और जब तुम रोजा रखो। एक ही तरह का फ्रेज है 6 की 5 में और जब तुम दुआ करो, 6 की 16 में और जब तुम रोजा रखो। दोनों जगहों पर बताया गया है रियाकार नहीं बनना। इससे मुराद यह है कि दुआ और रोजे का एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा
ताल्लुक है। इसीलिए मसीह खुदावन ने इस बात का यहां पर जिक्र किया है। इवन आप जानते हैं कि मसीह खुदावन बजाते खुद बियाबान में बपतिस्मा लेने के बाद खुदा का रूह उनको बियाबान में ले गया ताकि वो आजमाए जाए। 40 दिन तक रोजा रखा और मां बाद आप जानते हैं कि इस दौरान वो इस कदर इक्विप हुए कि बाद में मिनिस्ट्री का आगाज किया। फरिश्ते आकर आपकी सेवा करने लगे और खिदमत करने लगे। यह बात बड़ी गौर तलब है और अहम तरीन बात है। जब हम दुआ में और रोजा में लग जाते हैं, खुदा हमें अपने कलाम के सांचे में ढालता है ताकि हम उसकी मर्जी को और करीब से जान सके और उसका नूर हमारी जिंदगी से मुनक्किस हो। और आखिरी पॉइंट, दुआ और रोजा का नतीजा हमारी सेहत पर भी पड़ता है। हमारी सेहत और बेहतर और अच्छी हो जाती है। यह मुख्तसर तौर पर मैं बात कर रहा हूं। मुझे याद पड़ता है कि मुझे भी जरा एक्सरसाइज वगैरह करने का शौक है। मेरे इर्द गिर्द जंगलात हैं और बाज औकात जंगलों में नेचुरल एक्सरसाइज की चीजें लगी हुई हैं। नेचुरल दरख्तों को काट कर उन्होंने बनाई हुई हैं। और कभी कभी मेरा भी जी करता है कि मैं भी जरा मुंडा बनूं और मैं भी जरा वजन उठाऊं और मैं भी जरा एक्सरसाइज करूं, और मैं करता भी हूं। लेकिन एक बात, इस एक्सरसाइज से आप में से वो जो रेगुलर जिम जाते हैं, आप जानते हैं कि हमारे मसल्स और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और वो फूलते भी हैं फिजिकल एक्सरसाइज करने से। एक तो हमारी ये शख्सियत है और एक बातनी शख्सियत है। ये जो फिजिकल शख्सियत है, अगर इसके लिए एक्सरसाइज की जरूरत है, डॉक्टर कहते हैं कि वॉक करो, वो कहते हैं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये वाला खाना है। तो दूसरी तरफ हम परहेज भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब हमारी जो अंदरूनी शख्सियत है, रूहानी शख्सियत जो है, उसके लिए मैं और आप क्या करते हैं? उसकी रूहानी एक्सरसाइज रोजा और दुआ है। हम इस बात को ना भूलें। इसी से हमारे रूहानी मसल मजबूत होंगे। हम खुदा के हुजूर झुकेंगे रात के पहरों में भी। और बाय द वे, जब मैं बार बार रात का जिक्र करता हूं तो जरूरी नहीं रात को, जो खुदा हमें मौका फराहम करे, जो हम समझें कि मेरे लिए आसान है, कर सकते हैं दुआ। यह कोई मजबूरी नहीं है। और मैं खुशी से उठता हूं, जहन में एक अलार्म लगा हुआ है, एकदम मुझे पता है मेरा प्रेयर टाइम हो गया और मैं उठता हूं। आपके लिए कोई अपना टाइम हो सकता है। और मैं ये कहूंगा, अगर बहुत सारे काम बन नहीं पा रहे तो रोजा और दुआ के जरिया अपनी रूहानी जिंदगी के मसल्स को मजबूत कीजिए और फिर देखिए कि खुदावंद मेरी और आपकी जिंदगी में कैसे इनकलाब लाते हैं। बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए मैं यहां पर इख्तिताम करूंगा। मेरी दुआ है कि खुदावंद हमें रस्मी मसीही ट्रेडिशनल रोजे रखने से बाज रखे और वो रोजा जिससे हम खुदा के चेहरे के दीदार के तालिब हों, वो रोजा रखने और दुआ करने का फजल अनायत फरमाए। और इस आयत को हम अपने जहन में रखें कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिलती जाएगी। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। एंड हैव अ ग्रेट टाइम एंड टेक केयर।